જિંદગીમાં પહેલી વાર ભરત બોલ્યા છે। અત્યાર સુધી બિલકુલ મૌન રહેલા ભરત આજ બોલ્યા। આશ્રિતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સદગુરુ બોલ્યો છે આજ। સાંભળ, તું જેને મારે છે ના, હું એ નથી, હું તો આત્મા છું, તું તો મારા શરીરને મારે છે। હું તો આત્મા છું। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तू आ शरीर ने मारी सके पर मारा आत्मा ने न मारी सके। અને આત્મા તો એનું એક સ્વરૂપ છે, એ ચૈતન્ય છે। આત્મા એ પોતાના નિજાનંદમાં મસ્ત રહેનારો છે। એને કોઈ સુખ દુઃખ હાનિ લાભ એને કઈ ન સ્પર્શે। વિચાર કરે, અરે આપ કોણ છો? જેના આંગણે જાઉં છું એ ક્યાંક મારી કસોટી કરવા તો નથી આવ્યા ને? સાક્ષાત કપિલ તો નથી ના? અરે આપ ગુરુ દત્તાત્રેય તો નથી ના? આપ કોણ છો? ત્યારે કહે રાજા, હું કોણ છું એ જો જ્ઞાન થઈ જાય તો જગતમાં બીજું કઈ કરવું જ ના પડે। એક એક વાક્યો જે નીકળે છે મહાસાગરના મોતી જેવા, એક એક મહાવાક્યો आज राजा रहुगण ने स्पर्शी रह्या छे, हृदय स्पर्शी रह्या छे। पछी तो चाबुक मूक्यो अने बे हाथ जोड़िया अने कहे, महाराज आप हवे मने कईक ज्ञान आपो। अने पछी तो सरस मजानी ज्ञाननी चर्चाओ करे छे अने कहे छे, हे राजा प्रभुनु भजन कर। मानव देह मळ्यो छे, प्रभुनु भजन कर, सत्संग कर। तो बोले, महाराज एटले तो हूँ जतो हतो। बोले, अहंकारनी पालखीमां बेसीने जतो हतो। एक बाजू अहंकार पण राखवो छे, बीजी बाजू आत्मज्ञान पण जोईए छे। आत्मज्ञान जो जोईतुं होय तो अहंकार छोड़वो पड़े। अने पछी तो आज राजा रहुगण शुद्ध बनी गयो अने सामे उभेला भरतजी महाराज जे शुद्ध चैतन्य स्वरूप एना पगमां पड़ीने जाणे बोली रह्यो छे, हे मैं तो सिद्ध रे ए जानी ने तमने सेविया। मैं तो सिद्ध रे जानी ने तमने सेविया। मैं तो सिद्ध रे ए जानी ने तमने सेविया। मैं तो सिद्ध रे जानी ने तमने सेविया।
सखियो सामैया हे करो रे मारा शाम ना। मारा માટે સિદ્ધ નહીં પણ મેં તો શુદ્ધ રે હે જાણીને તમને સેવ્યા। મારા રુદિયામાં એ દિવસ ને રાત એ જીવન ભલે ને જાગી जीवन भले ने जागिया। કહેવાનો મૂળ આશય કે આજ ભરતજી મહારાજની ગતિ કરાવી છે। એક વાત એવી છે કે જે રાજા રહુગણ એ પેલો જે હરણ હતો એ જ આજ રહુગણ રાજા બનીને આવ્યો। સંતનો પ્રતાપ છે, સત્સંગનો એ પ્રતાપ કે આજ એને ઉર્ધ્વ ગતિ મળી છે। રાજા રહુગણ એ ગત જન્મનો એ હરણ જ આજ અહીંયા રાજા બનીને આવ્યો છે। વિચાર કરે કે તારા લીધે મારે એક બે ચક્કર મારવા પડ્યા તો હવે તારોય ઉદ્ધાર કરતો જાવ ને મારોય ઉદ્ધાર કરતો જાવ। બંનેનો ઉદ્ધાર કરે। છેલ્લે 28 પ્રકારના નરકોનું વર્ણન કરી અને અહીંયા 5મા સ્કંદને વેદવ્યાસજી મહારાજ વિરામ આપે। એતે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસિકામ ષોડશ સહસ્રયામ પરમહંસ્યામ સંહિતાયામ પંચમ સ્કંધ સમાપ્તમિદમ દ્વારિકાધીશ કી જય। ત્યારબાદ છઠ્ઠા સ્કંદની શરૂઆત કરતા કહે રાજુવાચ દૃષ્ટ શ્રુતાભ્યામ યત પાપમ જાનન્યપ્યાત્મનો હિતમ કરોતિ ભૂયો વિવશ પ્રાયશ્ચિતમ અથો કથમ। મહારાજ આપ જે કથા કરો છો ના એ મને ખૂબ ગમે છે, મારા હૃદયને સ્પર્શી જાય છે। પણ સાંભળો, આપે જે છેલ્લે 28 પ્રકારના નરકોની વાત કરી ના એને સાંભળીને જ મને ધ્રુજારી છૂટી ગઈ છે। પ્રભુ, 28 પ્રકારના નરકોમાંથી બચવાનું કોઈ સાધન? તો કહે હા, એક જ માત્ર ને માત્ર સાધન છે, તે છે પરમાત્માનું નામ, ભગવાન નામ। તો બોલે ભગવાનનું નામ? હા। બાય કુભાય અનઘ આલસહુ નામ જપત મંગલ દિસિદસહુ। રામચરિત માનસ में કહે બાવે કુભાવે લીધેલું નામ એ પરમાત્મા સુધી પહોંચાડે, મંગલ કરનારું છે। સાકર આપણે ભાવે ખાઈએ તોય મીઠી લાગે અને કુભાવે ખાઈએ તોય આપણને એ તો મીઠી જ લાગે। એમ પરમાત્માનું નામ ભાવે લો તોય ભલે અને કુભાવે લો તોય મીઠું જ લાગે। ભાઈ બહેનો, તો બોલે પણ ભગવાનનું નામ અનાયાસ લેવાઈ જાય તોય? બોલે હા। સાંભળો, કન્યાકુબ્જ નામનો એક દેશ છે, ત્યાં અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહે છે। આ બ્રાહ્મણ સંગથી બગડ્યો છે। બ્રાહ્મણ હતો પણ યુવાનીમાં સંગથી બગડ્યો। સંગ કોનો થાય છે બહુ મહત્વનું છે ભાઈ બહેનો। ગંગા સતી એમ કહે ના, સંગ તું કરો તો તમે એ વાનર નિકરજો પાનબાઈ, એ જે ઉતારે ભવ પાર। સંગ તું કરો તો તમે એ વાનર નિકરજો પાનબાઈ, એ જે ઉતારે ભવ પાર। ए बैठिए न जो हाथ हाकी जिना कुसंग संग कायर के संग सुर भागे ही भागे। बैठिए न जो हाथ हाकी जिना कुसंग संग कायर के संग सुर भागे ही भागे। ए काजल की कोठरी में कितनो जतन करो, काजल को दाग आखिर लागे ही लागे। बागन के बाग में फूलन की बात में कामिनी के संग काम जागे ही जागे। बिहारी लाल ऐसो है मेरे प्यार की
પ્રતાપ છે. પગ ઘુંઘરું બાંધ મીરા નાચી રે. અહીંયા બેઠેલા આ બધા જ આ સમાજના મૂર્ધન્ય લોકો છે. કોઈના હાથમાં ક્યારેય મંજીરા જોઈએ? મેં પૂછ્યું, મેં આ બધું મને કે આ ગયા વખતથી જ આ બધો રંગ લાગ્યો છે કે હું તો માં ભગવતીને પ્રાર્થના કરું કે આ રંગ ક્યારેય ઉતરે જ નહીં. આ બધા કેવા રૂડા લાગે તમે જુઓ તો ખરા. મારી બહેનો દીકરીઓ આ તો બધી રૂડી લાગે જ, જોગમાં આવ્યો જેવી લાગે. પણ આ બધા ભાઈઓના હાથમાં, કોઈના હાથમાં ખંજરી ને કોઈના હાથમાં કરતાલ ને કોઈના હાથમાં ઘૂઘરા ને તમે જુઓ તો ખરા. મિત્ર આના હાથમાં હોય શું? પેલી માપપટ્ટી હોય, માપ્યા કરે. આટલા ફૂટ અહીંયાથી લેજે ને આટલા ફૂટ અહીંયાથી લેજે. પાછા એમાં રમેશભાઈ નું તો ફેવરેટ શબ્દ ને ટોટી લેવલે લેજે કે. આના હાથમાં હોય કોઈ દી? પણ આ તો બધો સંઘનો પ્રતાપ છે. ए बैठी है ना जे हाथ हाकी जे ना कुसंग संग कायर की संग सूर भागे ही भागे. बैठी है ना जे हाथ हाकी जे ना कुसंग संग कायर की संग सूर भागे ही भागे. ए काजल की कोटरी में कितनो जतन कर काजल को डाक आखी लगे ही लगे. पागल के बाग में फूलन की बात में कामिनी के संग काम जगे ही जगे. ए काला बिहारी लाल ऐसो है मेरा प्यार. तीनों में एक रंग लगे ही लगे. तीनों में एक रंग लगे ही लगे. और तीनों में एक रंग लगे ही लगे. हमारे रमेशભાઈ એવું બોલે કે આ ટોટી લેવલ લેજે ને અમારા મધુભાઈ ઈ ચિત્રાજ કરે. તમે જો ગમે ત્યારે એના હાથમાં કાગળ ને પેન આપો ને એટલે ઈ નકશા જ બનાવ્યા કરે. તમે જો અહીંયાથી આમ લેજો, અહીંયાથી આમ લેજો, અહીંયાથી આટલું કાપજો, અહીંયાથી આટલું કાપજો. મને લાગે દિવસમાં 2-5 નોટ તો એમને બગાડી નાખતા હશે. પણ એના હાથમાં ઘૂઘરાઓ છે. આ સત્સંગનો પ્રતાપ છે. અને આ બધા એવા રૂડા લાગે. હા વારી જાઓ. ભગવાન મારા ભાઈઓને 100 વર્ષની ઉંમર આપે એવી આજના દિવસે પ્રાર્થના મારી. તો અહીંયા અજામિલ સંગ દોષથી બગડ્યો. ઘરની અંદર આજ ભક્તિ ભાવ શું કહેવાય કઈ ખબર નથી. કોઈ પ્રકારની મર્યાદા નથી, કઈ જ નહીં. નાસ્તિક માણસ છે. એક દિવસ આ અજામિલ બહાર ગયો છે. સંતો મહાત્માઓ આવ્યા. ગામના પાદરે આવીને પૂછ્યું, ગામની ભાગોળે આવીને પૂછ્યું, આ ગામમાં કોઈ સંત ભક્ત, કોઈ મહાત્મા કોઈ રહે છે? બોલે હા, અમારા ગામમાં એક મહાન ભક્ત છે. અને એમાં જે આ ગામના ચોરે જે બેઠા હોય ને, આપણે ત્યાં ન્યૂઝપેપરો બધા રોજે રોજ આવે ને, સંદેશ, અકીલા, સાંજ સમાચાર, ગુજરાત સમાચાર, દિવ્ય ભાસ્કર, ઇન્ડિયા ટુડે, આ બધા રોજે રોજ દૈનિક છાપાઓ. પણ ગામના ચોરે બેઠેલા તો એવા છાપાઓ અડધો કલાકે બહાર પડે. ગામની ભાગોળે બેઠા હોય એને કઈ બીજું કઈ ના હોય. આ બધી આપણા ગામડાઓની બધી રીધી સીધીઓ બધી. પૂછ્યું, એમને જ પૂછ્યું. આ લોકોનું બેઠક ત્યાં જ હોય. ભલે દીકરાઓ ગુજરી ગયા પછી બેસણું એના ઘરે કરે, બાકી તો રોજ બેસણું એનું ગામના ચોરે જ હોય. પૂછી, આ ગામમાં કોઈ સંત ભક્ત? બોલે હા, અમારા ગામમાં બહુ મોટામાં મોટો ભક્ત. કોણ? બોલે અજામિલ. જા બચ્ચા ચઢ જા સૂલી પે. બોલે ક્યાં છે એમનું ઘર? બોલે આ સામે રહ્યું, એ તો એમનું ઘર છે. બધા સંતો ત્યાં ગયા. ત્યાં જઈને કહે, સાંભળ્યું છે અજામિલ ભક્ત? અંદરથી બહેન બહાર આવી, અજામિલની પત્ની સામે જોઈને કહે, શું કહ્યું? બોલે ભક્તરાજ છે ઘરે. કોણ ભક્તરાજ? તમારા પતિ અજામિલ. અજામિલ ભક્ત? બોલે હા. પત્ની વિચાર કરે, મારા પતિને આવી ડિગ્રી આપી કોણે? આવું ટાઇટલ આપ્યું કોણે? ભક્ત ને મારો પતિ?
પણ વિચાર કરે કંઈક સંકેત છે. બોલે શું હતું? બોલે અમને અહીંયા બપોરે પ્રસાદ લેવો છે ને, એટલે અમે તારા ઘરે આવ્યા છીએ દેવી. ક્યાં છે ભક્તરાજ? વિચાર કરે મારા ઘરે સંતો કોઈ દિવસ ન હોય, આજે આવ્યા છે તો લાભ લઈ લો. અને તુરત જ બોલી સાંભળો, ભક્તરાજ નથી તો શું થયું? ઘર તો છે ને, હું છું ને, આવો અંદર. એક પછી એક સંતો મહાત્માઓ બધા અંદર પ્રવેશ કર્યો. બોલે શું જોઈએ આપને? બોલે કાચો સીધો સામાન આપો. કાચો સીધો સામાન આપ્યો અને એ સીધો સામાન લઈને સંતો પોતે આજ રસોઈ બનાવે. સંતો મહાત્માઓએ આજ રસોઈ બનાવી અને એ જ સમયે આજ વાહ ભાઈ વાહ, સંતો મહાત્માઓની જ વાત ચાલે છે. ને આજે આપણા જગતગુરુ આચાર્ય શ્રી હંસદેવાચાર્યજી બાપજી અહીંયા બિરાજમાન થયા છે. આપણે સૌ કોઈ એમનું સન્માન કરીશું પોતપોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈને. ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુ જ્ઞાન મંગલમ. આજ આપણી વચમાં મેશ્રિયા પરિવારના આમંત્રણને માન આપી જગદગુરુ રામાનંદાચાર્ય સ્વામી શ્રી હંસદેવાચાર્યજી મહારાજ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. વ્યાસપીઠ પરથી મારા સત સત પ્રણામ મેશ્રિયા પરિવાર વતી હું હાર્દિક આપને આવકારું છું. હવે આગળનો દોર હું માઇક ત્યાં જ સોંપું છું. હલો હલો. બાપુનગર વિસ્તારના ખૂબ જ અહોભાગ્ય છે. મેશ્યા પરિવારના ભાવને આધારે આ જ્યારે સપ્તાહનું આયોજન થયું ત્યારે પૂજ્ય દીદીના મુખે આપણે કથામૃતનો લાભ તો લઈએ છીએ, પરંતુ સોનામાં સુગંધ ભળે એમ આ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રને પાવન કરવા માટે પવિત્ર જગન્નાથ ધામ હરિદ્વારથી જગતગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્ય સ્વામી શ્રી હંસદેવાચાર્ય મહારાજ શ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. મિત્રો, આવા મહાપુરુષો જ્યાં જાય ત્યાં તીર્થો બનતા હોય છે. એમના ચરણ રજથી તીર્થ બને એવા તીર્થરાજ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. એમનું આપણે સમસ્ત બાપુનગરની જનતા વતી સ્વાગત કરીએ.
વિનંતી કરું મેસિયા પરિવારમાંથી ભાઈ શ્રી ભીખુભાઈ શંભુભાઈ મેસિયા, રમેશભાઈ બાબુભાઈ મેસિયા, કનુભાઈ મેસિયા, ચતુરભાઈ મેસિયા, ભનુભાઈ મેસિયા, ભરતભાઈ મેસિયા, અશોકભાઈ મેસિયા અને મુકેશભાઈ મેસિયા, આ આઠેય ભાઈઓ સ્ટેજ ઉપર પધારશે અને આઠેય ભાઈઓ વતી ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ અને ચતુરભાઈ એમનું પુષ્પદલથી પૂજન કરશે. ભાઈઓ શાલ ઓઢાડી અને આપણી ગ્રહસ્થની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરશે. પૂજ્યપાદ સંતોના ચરણોમાં વંદન કરી અને વિનંતી કરીએ પૂજ્ય હંસદેવાચાર્યજી મહારાજ આપણ સર્વને થોડી ક્ષણો માટે એમના અમૃત વચનોનો પણ આપણને લાભ આપશે. આપણ સર્વને આ માધ્યમથી સંત દર્શન અને સંતના મુખેથી અમૃત વચનોનો લાભ મળી રહ્યો છે. પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી હંસદેવાચાર્યજી મહારાજ શ્રી આપણને ભક્તિભાવપૂર્ણ અમૃત વચનો કહે છે. આપણે સૌ એમને હૃદયમાં ધારીશું. हरि ओम. श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम. रामानंद संराम प्रादुर्भूत महितले वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी प्रमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हरि ओम. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि. ओम शांति शांति शांति. अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राम रघुनंदन मारुति नंदन के चरणों में बारंबार कोटिशाह वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा है ना, भगवान का साक्षात स्वरूप जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जाने लगे तो उद्धव ने कहा, भगवान आप जब चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे, कौन हमें संभालेगा, हमारा मालिक कौन होगा, हम किसके सहारे जिएंगे। हे कृष्ण तू ही तो है जिसके सहारे हम जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धव मैं कहीं जाऊंगा नहीं, देह रूप में तो ना रहूंगा क्योंकि मर्यादा है। मनुष्य रूप में हम आए हैं तो इस मनुष्य रूप में आए हैं तो इस शरीर का आना निश्चित है, इस शरीर का जाना भी निश्चित है। जाना तो है परंतु मुझे सदैव वो पाएगा, मेरे पास वो सदैव रहेगा, मैं उनके पास सदैव रहूंगा। और अगर मुझे देखना होगा, मुझे मिलना होगा और मेरे पास बैठना होगा, दवस श्रीमद् भागवत की कथा होती होगी, जब वहां जीव चला जाएगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा, मैं वहां मिलूंगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं श्रीमद् भागवत के रूप में इस दुनिया में रहने वाला हूं, संसार में रहने वाला हूं। इसलिए हम श्रीमद् भागवत को साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप मानते हैं।
तो आज श्रीमद् भागवत जो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, हम उसको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत की पावन कथा कहने और दिव्य अमृतवाणी जिनके द्वारा आपको प्राप्त हो रही है, जिनकी 200वीं कथा थी, इसी अहमदाबाद कर्णावती में तब भी मैं आया था। अगर कुछ लोग हैं, और अब 241वीं कथा है, इसमें भी मैं आया हूं, बद्रीनाथ की कथा में और ऋषिकेश की कथाओं में अनेक बार। तो पूज्य दीदी गीता बहन बहुत सरस राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, अनेक पुराणों पर इतनी सरल और लोक भाषा में कथा कहती हैं। बहुत धन्यवाद की पात्र हैं गीता बहन, और धन्यवाद के पात्र भी हैं मेशिया परिवार। यहाँ भी 8 भाई आए थे और श्रीमद् भागवत में 8 का बड़ा वर्णन है। नारद ने कहा, आकाशवाणी हुई जब कंस एक एक करके वसुदेव के सब पुत्रों को मारता जा रहा था, आकाशवाणी हुई थी तुझे 8वां ही मारेगा। अर्थात वसुदेव के भी 8 हुए थे और ये मेशिया परिवार के भी 8 भाई यहां पर आए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और अष्ट सिद्धि भी हैं, 8 ही सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि हैं, 9 निधि हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ते ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। 8 का, और श्री कृष्ण भी अष्टमी के दिन ही पैदा हुए हैं। रामनवमी के दिन, कृष्ण अष्टमी के दिन। 8 का, मुझे 8 के शब्द पर, 8 के अक्षर पर बहुत एक स्मरण हो आया कि ये 8 बड़े भाग्यशाली हैं। 8 कृष्ण का अंक 8 है, राम का अंक 9 है, तो कृष्ण का अंक 8 है। तो श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा आपके मेशिया परिवार के द्वारा हो रही है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। उपस्थित देव स्वरूप पुरुषो भगवती वे शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति वे देवियां। गुजरात प्रांत ही भक्ति का प्रांत है। श्रीमद् भागवत कथा, हमारे यहां मनीषियों ने कहा कि ये रामचरित्र मानस जीना सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है। कैसे जाना संसार से, कैसा रहना संसार में। आप देखें कि महाराज परीक्षित जब श्राप ग्रसित हो जाते हैं, तब वो ऋषि के शरण में जाते हैं, महात्माओं की शरण में जाते हैं, और सुखदेव स्वामी जैसा विरक्त श्रोमणी, भगवान साक्षात शिव का अवतार सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हमें मरना कैसे सिखाती है। मारती नहीं है, मरने नहीं देती है, मरना सिखाती है। कभी आप सोचें कि श्रीमद् भागवत कथा में आएंगे तो जल्दी मरण हो जाएगा, नहीं। मरना सिखाती है, मरने नहीं देती है। मरना कैसे सिखाती है, मरने नहीं देती है। मौत का भय छुड़ा देती है श्रीमद् भागवत, इसलिए मरना सिखाती है। मौत से डर नहीं लगता उसको जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है। आप कहेंगे कैसे मौत उसको नहीं लगती, मौत से उसको भय नहीं लगता। महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव स्वामी के मुख से सुनी। जहां कथा सुनने से पहले मौत से भय लग रहा था, कथा सुनने के पश्चात मौत का भय जाता रहा। आज महाराज परीक्षित ने कहा कि नाग आवे तो आ जावे, और इस नाग के लिए वो स्वागत सत्कार किया जाए। अगर किसी को पता लग जाए कि ये नाग मुझे डसने वाला है,
तो आज का इंसान उस नाग को, उस सांप को, सर्प को मारने के तमाम उपाय कर डालेगा कि नाग मुझ तक पहुंचे नहीं। और सुखदेव स्वामी ऐसे कहते, दूध का कटोरे बिछा दो, फूलों की एक बिछावट कर दीजिए और फूलों का आसन दीजिए, नाग को आने दो। अब इस शरीर को वो डस नहीं सकता, आत्मा को डस नहीं सकता। वो शरीर को डसे तो डसे, मेरी आत्मा मरने वाली नहीं है। नहीं, मौत सामने दिखाई देती और आदमी घबरावे नहीं। घबराता कब है? जब कथा नहीं सुनता। और घबराहट कब समाप्त हो जाती है? जब कथा की शरण में आ जाता है। महाराज परीक्षित को मौत का भय तभी तक सताया जब तक ऋषि की शरण में नहीं गया, महापुरुषों की शरण में नहीं गया, श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना, तब तक भय सता रहा था। और जब कथा सुनने लगे तो तब संसार का भय समाप्त हो गया। और कहते, नाग आता है तो आने दो, अब इस मिट्टी को डसेगा ना, मिट्टी तो ये मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु मुझ आत्म स्वरूप को तो वो डस नहीं सकता, मुझे तो अब वो नाग मार नहीं सकता। इसलिए आप कहेंगे बारंबार, एक बार नहीं अनेकों बार श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाती है। अर्थात आपके जीवन से उस भय को दूर करने के लिए, डर को दूर करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है कि जो है देवी संपदा का लक्षण क्या है, देवी गुणों का वर्णन क्या है। दो प्रकार की संपत्ति हर मानव के पास रहती है, हर इंसान के पास दो प्रकार की संपत्ति है। और वो दो प्रकार की संपत्ति क्या है? देवी संपत्ति और आसुरी संपदा। देवी संपदा क्या करती है, आसुरी संपदा क्या करती है? महाराज परीक्षित के पास देवी संपदा आ गई थी, महाराज परीक्षित के पास दिव्य गुण आ गए थे। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमतः, कहते देवी संपत्ति मुक्ति प्रदान करती है और आसुरी संपदा बंधन में डाल देती है। गलत काम व्यक्ति करता है तो कहां जाता है? क्यों? गलत व्यक्ति अगर काम करेगा, अगर कार्य गलत हो जाएंगे, टैक्स की चोरी हो जाएगी, किसी की डेथ कर देगा, मर्डर कर देगा, या और कुछ काम कर देगा, बलात्कार कर देगा और अन्य गलत काम कर देगा, तो कहां जाएगा? जेल में ना। और अच्छा काम करेगा तो लोकसभा में कि राज्यसभा में, विधानसभा में? नहीं, अच्छा काम करेगा तो वो भगवान के यहां जाएगा, गलत काम करेगा तो जेल में जाएगा। तो अच्छा काम करने वाले को डर लगता है या बुरा काम करने वाले को डर लगता है? अच्छा काम करने वाला कभी डरता नहीं और बुरा काम करने वाला सदैव डरता रहता है। जिनकी गोदामों में नंबर 2 का स्टॉक पड़ा रहता है उनको चिंता लगी रहती है, और जिनके गोदाम में नंबर 1 का स्टॉक पड़ा रहता है, कोई भी अधिकारी आवे, चेक करके जांच करके आवे तो उनको घबराहट नहीं होती। और जिनके नंबर 2 का स्टॉक होता है तो आपके यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं किस किस के पास है। तो दिक्कत किनको है, भय किनको है? भय कौन मानता है? कहते जो गलत काम करता है वो भय मानता है। जो अच्छा आप ये बताइए, पुलिस है, अच्छा काम करने वाले को वेलकम करती है और बुरा काम करने वाले को जेल में डालती है, पकड़ लेती है, सजा देती है। तो ऐसे ही गलत काम करने वाले को डर लगता है। जो गलत काम करता है वो आसुरी संपदा है उसके पास, और जो अच्छा काम करता है उसके पास देवी संपत्ति है। और देवी संपत्ति क्या करती है? मुक्ति प्रदान करती है। देवी संपदा क्या है? आसुरी संपदा क्या है? इस रुपए, पैसे, डॉलर, पाउंड को आप संपदा में मत गिनिए। ये तो आना जाना लगा रहता है। मेरे विचार कैसे हैं, मेरी क्रियाएं कैसी हैं, मेरा कृत्य कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, ये संपत्ति है। एक पिता के यहां 2 पुत्र हों, एक का अच्छा चरित्र हो, वो कहेगा मेरा तो एक ही बेटा है, दूसरे को कहेगा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, अखबार में निकाल देता है कि इस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक लड़के को सारी संपत्ति दे देता है और एक को कहता है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, पेपर में निकाल देता है, बेदखल कर देता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
किसके लिए करता है? जो गलत काम करता है। ऐसे ही परमात्मा कहते जो अच्छा काम करते वो मेरे लाडले हैं, मेरी विरासत के मालिक हैं, मेरे उत्तराधिकारी हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे भक्त हैं, मेरे सेवक हैं। जो गलत काम करते हैं वो राक्षस होते हैं। तो देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, कहते देवी संपत्ति मुक्ति देती है, आसुरी संपदा बंधन में डालती है। अब देवी संपत्ति क्या है? देवी संपदा का लक्षण क्या है? देवी संपदा के लक्षणों के बारे में श्रीमद् भगवत गीता जी के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्था दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेष्व औलुलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम नाद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारतः। भारत नाम अर्जुन का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू देवी संपदा से युक्त हो जा। श्रीमद् भागवत की कथा भी आपको देवी संपदा से युक्त करने के लिए है। जब आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तो आपका डर समाप्त हो जाता है, आपका भय समाप्त हो जाता है। जब आप निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, तब क्या होता है? अभयम सत्व संशुद्धि, कहते भीतर और बाहर की पवित्रता हो जाती है। व्यक्ति बाहर से भी पवित्र होता है। कहते जिसका भय समाप्त हो गया उसकी बाहर और भीतर की पवित्रता हो जाती है। वो बाहर से भी पवित्र होता है, अंतर से भी पवित्र होता है। उसकी बाह्य अवस्था भी पवित्रता में रहती है, उसके अंतःकरण की अवस्था भी पवित्रता में रहती है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान, और फिर वो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान योग में स्थिर हो जाता है, वो ज्ञानी बन जाता है। कहते जो निडर होता है, जो डरता नहीं है, वो भीतर और बाहर से पवित्र होता है। जो भीतर और बाहर से पवित्र होता है वो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। फिर ज्ञानी क्या करता है? अपना सर्वस्व दान कर देता। दानम, कहते वो सब कुछ दान देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कैसा दान? किस प्रकार का दान? कैसे लोगों को दान? इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। दानम, वो व्यक्ति दानी भी हो जाता है। दानम दमश्च, वो अपनी इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है। इंद्रियों का दमन होता है, मन का समन होता है। इंद्रियों को दबाया जाता है और मन को समझाया जाता है। मन को समझाते ना, कोई नुकसान हो जाए तो मन को समझाते कोई बात नहीं, आज नुकसान हुआ तो कल फायदा भी हो जाएगा। समझाते हैं कि नहीं? मन को मारते हो कि समझाते हो? अच्छा, मन को कैसे? कोई लाठी डंडे से तो कुछ होता नहीं है। मन को तो समझाया जाता है, इंद्रियों को दबाया जाता है। आप कहेंगे इंद्री कैसे दबाई जाती है? आंख इंद्री है, कान इंद्री है, नासिका इंद्री है, मुख इंद्री है, त्वचा इंद्री है, ये कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दानम दमश्च, कहते इंद्रियों का दमन किया जाता है। अब इंद्रियों को दबाया कैसे जाता है? आंख गलत देखने लगे तो आंख को बंद कर देते, तो दोनों पुतली दबाई तो आंख बंद हो गई, तो इंद्री को दबाया जाता है। हाथ किसी को मारने दौड़े तो हाथ को इधर खींचा जाता है, दबाया जाता है। पैर आगे बढ़ने लगे तो आगे बढ़ने से रोका जाता है। वाणी बोलने लगे तो वाणी को अगर अपनी मुख को बंद कर लेते तो दबाया जाता है। नासिका से अगर बाहर बदबू आ रही हो तो इसको भी दबाया जाता है। कानों में बहुत शोर हो जाए तो कानों में रुई डाल करके कानों को दबाया जाता है। इंद्रियों को दबाया जाता है और मन को समझाया जाता है। तो दानम दमश्च, फिर व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों का दमन कर लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो फिर वो यज्ञ करता है, यज्ञ में परिपूर्ण होता है। यह भी देवी संपदा का लक्षण है। दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय, फिर यज्ञ भी करता है। कैसा यज्ञ? कोई अन्न यज्ञ करता है, अन्नदान भी यज्ञ में माना जाता है, जलदान भी यज्ञ में माना जाता है, कन्यादान भी यज्ञ में माना जाता है, विद्यादान भी यज्ञ में माना जाता है। किसी को औषधि देना यह भी यज्ञ माना जाता है। किसी नंगे को वस्त्र दे देना यह भी यज्ञ माना जाता है। किसी जो व्यक्ति नहीं पढ़ सकता उसको स्कॉलरशिप आप दे दे, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ा दे, तो विद्यादान भी एक यज्ञ होता है। दानम दमश्च यज्ञश्च, फिर वो स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय का क्या मतलब? केवल किताब को नहीं पढ़ना। स्वाध्याय किताब पढ़ने का नाम नहीं है भाई।
स्वाध्याय है अपने आप का अध्ययन करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, मेरी स्थिति क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। स्वाध्याय, फिर वो तप करता है। इस प्रकार देवी संपदा के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते कि हे अर्जुन, देवी संपदा से युक्त हो जा। और देवी संपदा से कौन युक्त हो सकता है? जो श्रीमद् भागवत की कथा में आता है वो देवी संपदा से युक्त हो जाता है। और जो देवी संपदा से युक्त हो जाता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है, वो मुक्त हो जाता है, उसको बंधन बांध नहीं सकता, नरक में कोई ले जा नहीं सकता। तो हम नरक से बचना चाहते हैं, बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आजाद जीवन जीना चाहते हैं। एक पक्षी से भी पूछे, चिड़िया से पूछे, तोते से पूछे, कोयल से पूछे, अरे यहां तक कि गधे, कुत्ते, सुअर, कुकर, किसी से भी पूछे, कोई भी बंधन में रहना चाहता है क्या? जिनको ड्यूटी नहीं जाना, कारखाना नहीं चलाना, वो भी बंधन में नहीं रहना चाहते। और तुम तो सारे कारखाना चलाने वाले, दुकान चलाने वाले, मकान चलाने वाले, मोटर चलाने वाले, आप बंधन में रह सकते हैं क्या? कहते एक पक्षी बंधन में नहीं रह सकता, तो आप कैसे बंधन में रह सकते हैं? तो इसलिए बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तो देवी संपदा से युक्त हो जा। देवी संपदा से जब तुम युक्त हो जाओगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें अमीर बनाती है, देवी संपत्ति से युक्त कर देती है, ऐसा धनवान बना देती है। खर्च न खूटे, चोर न लूटे। कहते खर्च करोगे, कथा को जितना खर्च करो, जितना ये गीता बहन जी सुना रही हैं, तो कथा इनकी कम हो जा रही है कि बढ़ती चली जा रही है? बोलो ना। जितनी गीता बहन कथा सुनाती है उतना ज्ञान बढ़ता है ना, उतनी कथा बढ़ती है। तो खर्च करने से, कथा को खर्च करने से कम नहीं होगी। और चोर लूट लेगा क्या? धन संपत्ति, कार, मोटर सब तो चुरा सकता है चोर, परंतु कथा की चोरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो। कहते दिन प्रतिदिन ज्ञान बढ़ता रहता है। ऐसे ही आप जब दिन प्रतिदिन कथाएं, अनेक बार कथा सुनते रहेंगे, तो आप जितनी कथा सुनेंगे और जितना कथा में खर्च करेंगे, वो खर्च कभी कम होने वाला नहीं है और मिलता रहेगा। और चोर उस जो आप दान कर दोगे, घर में रखा हुआ, बैंक में रखा हुआ, तो टैक्स लग जाएगा। और कथा में लगाने वाले पर कभी टैक्स लगा है क्या? कोई हिसाब ही नहीं होता। 1 लाख लगा लो, 10 लाख लगा लो, 1 करोड़ लगा लो, 10 लाख लगा लो, कोई हिसाब रहता है क्या? नहीं रहता। जब हिसाब ही नहीं तो टैक्स कैसा? जब तुम अपने व्यापार में लगाते तो टैक्स देना लेना पड़ता है, जब कथा में लगाते तो फिर टैक्स का लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए खर्च करने से कम नहीं होगा, चोर लूट नहीं सकेगा। इसमें किए हुए खर्च को कोई चुरा भी नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो। कहते दिन प्रतिदिन एक, हमारे, मैं तो यहां तक कहता हूं, तुम 1 पैसा दोगे तो वो कितना देगा? जो बोलेंगे उन्हीं को मिलेगा। तुम 1 पैसा दोगे तो वो, अच्छा यहां के लोग बड़े संतोषी हैं, ज्यादा चाहते नहीं, इसलिए बोलते भी नहीं है कि नहीं। अब जरूरत ही नहीं तो फिर बोलना कैसा? मांगता तो वही है जिसको जरूरत हो। अच्छी बात है, ठीक है, संतोषी है। तो हम तो यहां तक कहते हैं, अगर धर्म में अगर हमारा 1 भी लगेगा तो वो 10 लाख भेजने वाला है। लगाकर तो देख। भगवान कहते तू लगा, तू बढ़ तो सही। हमारे यहां तो कहा है। अच्छा अब आप विचार करो, बैंक में 1 टका ब्याज मिलता है कि नहीं? 1 रुपया सैकड़ा देती होगी सरकार, बैंक वाले, और भगवान कितना देता है? गिनती नहीं है। अरे आप जब पैदा हुए तो कुछ लाए थे क्या? ये किसने दिया? भगवान ने दिया। अब जब जाओगे कुछ लेकर जाओगे क्या? अगर कुछ आप में से कुछ ले जाने वाले हो तो हम भी सीख लें थोड़ा। नहीं जाने वाला, ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे, यहीं रह जाएगा। केवल एक नाम जाएगा, एक धर्म जाएगा साथ में। क्या जाएगा? नाम। काम करने वाले का नाम होगा, और धर्म पर जीने वाले के साथ धर्म ही उसकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः।
कहते धर्म कहता तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज की इस कलिकाल के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है, मारती नहीं है। हमें जीना भी मरना भी सिखाती है और जीना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित को जीना सिखा दिया, उनको बोध हो गया। ऐसे ही आप भी जब 5 दिन, जब आज तीसरा दिन है श्रीमद् भागवत की कथा को, 5 दिन जब हो गए थे श्रीमद् भागवत की कथा होते होते, तो सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित से पूछा, राजन तुम्हें भूख प्यास नहीं सता रही? महाराज परीक्षित पता है क्या कहते हैं? कहते ना मुझे भूख सता रही है, ना मुझे प्यास सता रही है, बस मुझे तो ये आपकी कथा अमृत आनंद करा रही है। आपकी ये कथा अमृत आनंद करा रही है। तो आपका मन, शरीर यहाँ पर है, मन भी यहीं ठाकुर के चरणों में रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने मन भगवान को दे देता है, फिर भगवान उसके मन को कभी बिगड़ने नहीं देता। आप कहेंगे कैसे? आपके घर में फ्रिज है ना, सबके घर में है। आपके घर में फ्रिज है तो आप जो सामान फ्रिज में रखते हो वो खराब होता है क्या? नहीं ना, बिगड़ता नहीं, बगड़े नहीं। आवड़े छे भाई। હું આવતો હતો ને રસ્તામાં, એક ભાઈ મને કહ્યું મારા ચોક્કસ ગુજરાતીમાં 2 શબ્દ બોલવાનું છે। રસ્તામાં આવતો તો એ કહેતા હતા ભાઈ ક્યાં છે મને ખબર નહીં, તેના સાથે હતા। સમજી કે આવડે છે ને? तो जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज में जो भी रखा जाए वो सुरक्षित हो जाता है। सब्जी रखो, फल रखो, सामान रखो, तमें आपको कम मालूम है, इधर ज्यादा मालूम है। एक जगह मैंने पढ़ा, भगवान जब प्रेम करते हैं, प्रसन्न होते हैं तो माँ को भेजते हैं, और भगवान कभी नाराज होता है और सजा देता है तो पत्नी को भेजता है। कुछ बिगड़ता नहीं। क्यों नहीं बिगड़ता? रेफ्रिजरेटर है, उसमें सुरक्षित रहता है। ऐसे ही जो कथा होती है ना, ये भी रेफ्रिजरेटर जो इसमें आ जाता है ना कथा पंडाल में, वो बिगड़ता नहीं है। अब आप देखो, जो सामान फल फ्रूट सब्जी दूध दही फ्रिज से बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, और फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ठीक रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति सत्संग में सदा रहेगा वो सुधरा रहेगा, वो कभी बिगड़ेगा नहीं। जो सत्संग से बाहर रहता है वो बिगड़ जाता है। जैसे फ्रिज से बाहर रखी वस्तु बिगड़ जाती है, ऐसे ही सत्संग से दूर बाहर रहता हुआ व्यक्ति बिगड़ जाता है। और जब फ्रिज में डाल देते हैं तो वो बिगड़ता नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति जब सत्संग में आ जाता है, श्रीमद् भागवत की कथा में आ जाता है, वो फिर कभी बिगड़ता नहीं है। तो सज्जनों देवियों, अपने बच्चों को अगर सुधारना हो तो सत्संग में डालना, सत्संग में लाना, सत्संग के संस्कार देना, वो कभी बिगड़ेंगे नहीं। और आवती पीढ़ी ना बगड़े, एती वधारे कोई छे के ना जीवन में एते वधारी कछु नहीं। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आवती पीढ़ी, ये आपकी नौजवान पीढ़ी सुधर जाए। और श्रीमद् भागवत देखो, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, एजड लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, ये तो सुधरे हुए हैं, पर ये कुछ कुछ सुधरे हुए हैं, कुछ कुछ बिगड़े हुए भी रहते हैं। यहां तो सुधरे हुए आए हुए हैं भाई, यहां बिगड़े हुए नहीं है। बिगड़े हुए होते तो कहीं सिनेमा में होते, बिगड़े हुए होते कहीं जुआ खेलते होते, बिगड़े हुए होते तो किसी क्लब में होते, सत्संग पंडाल में ना होते बिगड़े हुए होते तो इसलिए अपनी इस आने वाली पीढ़ी को सुधारना है, मेरी नौजवान बहन बेटियों को सुधारना है, हमारे समाज को सुधारना है। तो उसका एक ही कारण है, एक ही उपाय है, एक ही औषधि है, करो सदा सत्संग, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, सदा सेवन करो।
यही करो सदा सत्संग, जब भी अवसर मिले मेरे प्यारे सत्संग करना। आप वडभागी हैं, भाग्यशाली हैं, आप जो भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और धन्यवाद है दीदी को जो अपना जीवन इस कथा में उन्होंने लगाया हुआ है, श्री कृष्ण के लिए, माँ भगवती के लिए। हर समय कथा का ही ध्यान रहता है, कथा ही करती रहती हैं, अपना जीवन केवल भगवत अर्पण किया हुआ है। वो भी भाग्यशाली हैं, आप भी भाग्यशाली हैं। श्रोता और वक्ता जब दोनों उच्च श्रेणी के होते हैं तो कहते हैं गुरु कामिल शिष्य आमिल तो खुदा शामिल। जब गुरु अच्छा होता है और चेला भी अच्छा होता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। जब कहने वाला भी अच्छा, सुनने वाला भी अच्छा, तो श्री कृष्ण को तो आना ही पड़ेगा, भगवान को तो आना ही पड़ेगा। और भगवान कहते हैं मैं कहां रहता हूं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद जी ने पूछा आपातकाल पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, आप कहां मिलोगे, कहां मिलेंगे आप? भगवान कहते वैकुंठ में ढूंढने मत जाना, बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी ढूंढने मुझे मत जाना। कहां जाना? ये क्या नगर है? बापू नगर, बापू नगर चौकस। अगर कहीं ढूंढना हो बापू नगर में चले जाना, श्रीमद् भागवत की कथा होगी, मेरा कीर्तन होता होगा, वहीं मिल जाऊंगा। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता, मेरे भक्त यत्र जहां गायंती, मेरा गायन करते हुए, मेरे नाम का कीर्तन करते हुए, मेरे नाम की कथा होती हुई होगी, तत्र वहां तिष्ठामि रहूंगा। तो भाई भगवान 8 दिन के लिए आपके बापू नगर में रहें कि सदा सदा के लिए रहें? थोड़ा बोल दो, ऐसी बात कर लेंगे फिर हम उनसे। क्यों सदा सदा कायम ना माटे ने अठवाड़ी माटे, कायम ना माटे। तो कायम ना माटे परमात्मा रहे तो शू करशो? दरेक रोज भगवाननी कथा अपना घर में सवेरे सांझ भगवान नाम लेशो। भले अगर परमात्मा को सदा सदा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं तो सदा उसका स्मरण करना, न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, और जग में यूं रहो जो कमल रहता है पानी में। संसार में ऐसे रहना जैसे कमल खिलता हुआ रहता है। ये जीव, ये मानव, तू भी खिलता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जी और संसार में रहे बस, परंतु इस संसार में मत फंस। संसार में बसना चाहिए, संसार में फंसना नहीं चाहिए। बसो मत फंसो। जो इस संसार में इस तरह से जीता है, ऐसे ही, यही तो जीना है, यही तो मरण का सीखना है। यही बात तो महाराज परीक्षित ने की। और भगवान कहते जब कथा को सुना, एक पावन ज्योत निकली और वो पावन ज्योत श्री कृष्ण में समा गई। ऐसा जब अंत समय हमारा भी आए तो बस मेरे सामने कन्हैया खड़ा हो, ठाकुर खड़ा हो और मेरे प्राण तन से निकले, सांवरा सामने हो, सांवरा निकट में हो, भगवान निकट में हो। ऐसी अपनी भाव बना लेना, ऐसा अपना जीवन बना लेना। मेरे पास घड़ी तो थी नहीं, समय का मालूम भी नहीं पड़ा, और कुछ कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा कि नहीं। तो इसलिए इतना ही कहकर मुझे भी जाना है, वाहन जा रहा। आज बहुत 3 दिन से कम 1 लाख लोग रोज, और सुबह से शाम तक मुझे तो विश्राम का समय ही नहीं मिलता। आज सोच रहा था कुछ आराम करूं तो प्रातःकाल दीदी का फोन आचार्य विचलदास जी महाराज से बात हुई होगी, तो उन्होंने कहा शाम को आपको वहां जाना चाहिए। मैंने भी कहा चलिए हम भी थोड़ा होके आते हैं, बापू नगर के लोगों से मिल के आते हैं, कुछ अपनी सुना के आते हैं, कुछ उनकी सुन के आते हैं। तो बहुत बहुत मेशिया परिवार को धन्यवाद, क्योंकि इनके माध्यम से आप सबको सत्संग का लाभ मिल रहा है। और
आप भी भाग्यशाली, ये भी भाग्यशाली, कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, कथा का आयोजन करने वाले सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इस व्यासपीठ से, गुरु गादी से आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ, बहुत बहुत आशीष देता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंદ। અહીંયા કથાનો સમય પણ આપણો થઈ ગયો છે. પૂજ્ય જગતગુરુ પૂજ્ય ગુરુજી અહીંયા પધાર્યા. ખરેખર એમના પાસમાં સમય નહોતો, પણ મેં સવારે રમેશભાઈને વાત કરી કે અહીંયા છેક જગતગુરુજી આવ્યા છે તો આપણે લાભ લઈશું. રમેશભાઈ મને વાત કરી કે દીદી એમાં પૂછવાનું જ ન હોય, અમારા મિસિયા પરિવારનું એ ભાગ્ય છે કે અહીંયા જગતગુરુ આવતા હોય તો એનાથી વિશેષ બીજું કંઈ ન હોય. તો આજે અહીંયા મિસિયા પરિવારના આમંત્રણને માન આપી પૂજ્યપાદ ગુરુજી અહીંયા પોતાનો ખૂબ કિંમતી સમય લઈને અહીંયા પધાર્યા છે. ફરી ફરીને આભાર તો મેં કાલે પણ કહ્યું હતું વિચલદાસ બાપજી પધાર્યા હતા ત્યારે કે આપણે આભાર માનવાનો ન હોય, કારણ કે આપણા માટે તો એ આપણા પિતા તુલ્ય છે. આપણે તો બાળકો છીએ. આપણે તો નમ્ર પ્રાર્થના કરવાની હોય કે આપની પાસે જો સમય હોય તો અમારા ઉપર તો આપના આશીર્વાદ રહે છે, પણ અમારા પૂરા ગિરનારી પરિવાર ઉપર આશીર્વાદ રહે એવા એક ભાવ સાથે પ્રાર્થના કરેલી અને એ પ્રાર્થનાનો એમણે સ્વીકાર કરી અહીંયા પધાર્યા છે. ફરી ફરીને એમના શ્રી ચરણોમાં મારી ભાવભરી વંદના. બધાના વતી મારા શ્રીના ચરણોમાં જય સિયારામ. અને હવે આગળનો કાર્યક્રમ આગળ વધારીશું. જો આપને અનુકૂળતા હોય તો અમારા બધા મેસિયા પરિવારના લોકો ભાગવતજીની પણ આરતી ઉતારશે, અને જો આપને અનુકૂળતા હોય તો આપ અહીંયા રોકાવો તો જરા ચરણ પાદુકાની પણ આરતી થઈ જાય. આપની જે અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે ઝડપથી.